Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video we are going to discuss the current affair from the September months, and we will discuss the last 6 month current affair for MH Law CET 3 and 5 years 2025 examination. So this is the most important question from the September months. Further more parts will be coming up, so stay tuned on this channel and do like and share this video. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on Pan India level, and the counselor will guide you. In case if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website where you can avail each and everything from the website. So let's go to website. So you have to go to the maneuveredu.com. Here you can see that law entrance examination. Click on that. You will get each and everything about the law CET 5 years. So यहाँ पर आप जाओगे. So you will get the live classes. Live classes are available here. MH Law CET 5 years 2027 S2C batch, 2026 S2C batch, 2025 के लिए भी अवेलेबल है. सेल्फ स्टडी कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. यू कैन अवेल द सेल्फ स्टडी कोर्स फॉर 2025 as well as 2026. Sectional courses are also available here, so you can choose any of the section for the law 5 years, that is GK, Quant, Logic, Legal, ये कुछ भी जो है आप choose कर सकते हो इनमें से. And mock tests are also available, the full length and topic wise mock test you can avail from the websites. Same as it is for the law 3 years के लिए भी जो है आप ऐसे ही जो है यहाँ पर MS CET law 3 years you can go for there and you can have the live classes like 2026 and 2027. You can have the self study course. तो सेल्फ स्टडी कोर्स S2C बैच जो है आपको यहाँ पर 2026 2027 के लिए मिल जाएगा. सेक्शनल कोर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर लॉ 3 years and mock tests are also available, that is topic wise as well as the full length mock test you can avail from the website. So each and everything you can get from the website. So let's start this session. So the first question is, who assumed the role of chairman and managing director additional charge of Hindustan Aeronautics Limited? तो HAL के जो है MD एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है चेयरमैन के तौर पे किसने जो है पोस्ट वो एक्वायर किया है, अज्यूम किया है? CV अनंत कृष्णन, R माधवन, DK सुनील, अशोक कुमार गुप्ता. दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको सितंबर के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेगा. लास्ट 6 मंथ का जो है यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे. एंड द करेक्ट आंसर इज DK सुनील. So DK Sunil was appointed as the chairman and managing director of the Hindustan Aeronautics Limited on August 31st 2024. तो HAL जो है आपको कंपनी है, एरोनॉटिक्स वगैरह जो है उसके पार्ट्स और भी चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, डिफेंस की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है. सो दिस इज द HAL और ये है DK सुनील. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who won India's first ever Paralympic bronze medal in judo? इंडिया ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट मेडल इन जूडो. जूडो में जो है ये पहला मेडल था जूडो कैटेगरी में. तो पैरा ओलंपिक्स जो पेरिस में कंडक्ट किया गया था आफ्टर द ओलंपिक्स 2024, पैरा ओलंपिक्स वाज कंडक्टेड एज द सेम वेन्यू एंड इंडिया जो है इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जूडो में किसने जीता है? ये पहली बार जीता गया है. मनीष कुमार, राहुल सिंह, कपिल परमार, विजय यादव. एंड द करेक्ट आंसर इज कपिल परमार. So Kapil Parmar made history at Paris 2024, becoming the first Indian to win a Paralympic medal in judo with a bronze in the men's 60 kg J1 क्लास में जो है इन्होंने ये मेडल जीता है. तो कपिल परमार का नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ हेलमेट कैमरा सिस्टम फॉर लाइव मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन नॉर्थ बंगाल? तो ये आप देखते होंगे रेलवे का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के बारे में आता है. तो वहाँ पर जो है रेलवे हेलमेट में जो है एक कैमरा लगाएगा, लाइव मॉनिटरिंग करेगा. वो सारी चीज़ें जो है आपको कैमरा के थ्रू पहले ही जो है वो मिल जाया करेगी कि किस तरह का ट्रैक है, कोई सिचुएशन तो ऐसा नहीं है. तो ये जो है किसने जो है आपको कैमरा सिस्टम जो लॉन्च किया है नॉर्थ बंगाल में? तो इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो, NHAI, सिविल एविएशन अथॉरिटी. एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन रेलवे. So Indian Railway introduced a helmet camera system in North Bengal to enhance safety and prevent train accident. This live monitoring system enables railway workers to detect and address mechanical issues in real time, ensuring safer train operation. सबसे पहली बार रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? So that is in 1853 during the time of Lord Dalhousie के टाइम में जो है सबसे पहले ये रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था. मुंबई टू थाने जो है ये रेल लाइन आपको देखने को रेलवे मिली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who have been named as the flag bearer for the closing ceremony of the Paris Para Olympics. So Paris Para Olympics में जो है
क्लोजिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बियरर कौन थे? हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल, दीपा मलिक एंड देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू एंड भाबिना पटेल, निरंजन मुकुंदन एंड मनीष नरवाल। तो ये पेरिस ओलंपिक या पेरिस पैरा ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं तो वो उसको आपको कर लेना है। तो करंट अफेयर का जो है डिटेल्ड आप एनालिसिस के लिए जो है आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, आप आ सकते हो। तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको पोर्टल पे अवेलेबल मिल जाएगी। एक एक करंट अफेयर जो है आपको 1 मंथ में लगभग 120-150 करंट अफेयर्स मिल जाया करेगा। सो कौन थे जो आपको क्लोजिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बियरर थे? एंड द करेक्ट आंसर इज हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। तो ये जो है आपको हरविंदर सिंह द गोल्ड मेडल विनर इन आर्चर, ये आर्चरी से जुड़े हुए हैं, एंड प्रीति पाल जो है ये स्प्रिंटर है। और ये दोनों जो थी वो क्या थी, आपको फ्लैग सेरेमनी में जो है क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे इंडिया की तरफ से पेरिस पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इमर्ज्ड एज श्रीलंकाज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रिसेंट इलेक्शन। तो श्रीलंका में जो है इलेक्शन हुआ था और उसमें नए प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के कौन बन गए हैं? श्रीलंका में पता ही है कि बहुत सारा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। 2022 से वहाँ टर्मोइल का सिचुएशन था, पॉलिटिकल जो है इम्बैलेंस चल रहा था, इनस्टेबिलिटी थी। अब जो है वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सजित प्रेमदास, अरुण कुमार दिसानायके, रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धना। एंड द करेक्ट आंसर इज अरुण कुमार दिसानायक. So Anurag Kumar Disanayak has been elected as Sri Lanka's new president, receiving 42% of the votes in the first election since the country's economic collapse in 2022. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ लगा दिया गया था और उसके बाद जो इंडिया ने भी ग्रांट प्रोवाइड किया श्रीलंका को, आईएमएफ से जो है आईएमएफ ने बेल आउट किया। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अब तक नहीं लगा है, कभी भी इंडिया हैज नेवर इम्पोज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन इन आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कभी भी इंडिया में इम्प्लाई नहीं किया गया, इम्पोज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी इज सप्लाइंग द अपाचे हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी को जो है अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो कौन सी कंपनी जो है वो दे रही है? लॉकहेड मार्टिन, एयरबस, बेल, बोइंग। And the correct answer is Boeing. So Boeing, the Indian Army is set to receive its first 3 H-64E Apache attack helicopter from Boeing in December. और ये जो है आपको टोटल 6 हेलीकॉप्टर जो है वो बोइंग से आपको आएगा। तो ये अमेरिका की कंपनी है बोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन टू कंजर्व एशियाटिक लायंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इको सेंसिटिव जोन के तौर पे जो है इसको डिक्लेयर किया गया है ताकि जो एशियाटिक लाइन है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है एक और स्टेप है ये। तो गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एंड द करेक्ट आंसर इज गिर नेशनल पार्क. So the Indian government designated 1.84 lakh hectares around the Gir protected area as an eco-sensitive zone. ये कहाँ है? तो ये है गुजरात में आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क, और ये जो है एशियाटिक लायंस वहाँ होते हैं और उसको जो है कंजर्व तो करेगा ही, प्रोटेक्ट तो करेगा ही, साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट करेगा. बात करते हैं इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है, तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे पहला है, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024. तो टैलेंट रैंकिंग में, स्किल रैंकिंग में इंडिया के जो रैंकिंग है वो कितना है, किस पोजीशन पे इंडिया है? 52nd, 45th, 58th, 67th, एंड द करेक्ट आंसर इज 58th. So the IMD World Talent Ranking 2024, India is ranked 58th globally with a talent score of 40.47 out of the 67 economic surveyed. स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है और सिंगापुर सेकंड नंबर पे है. इंडिया का रैंकिंग जो है टैलेंट रैंकिंग में 58 रैंकिंग पे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विलेज इन मणिपुर वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये कंडक्ट किया था और उसमें मणिपुर के किस विलेज को जो है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज के तौर पे जो है ये दिया गया है अवार्ड. मणिपुर ऐसे ही न्यूज़ में काफ़ी है, वहाँ का सिचुएशन काफ़ी, जो दो कम्युनिटी है माइती और कुकी, इन दोनों में काफ़ी सिचुएशन जो है आपको कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है उसको लेकर न्यूज़ में है. सो मणिपुर से कोई भी क्वेश्चन हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो विच विलेज? एंड्रो कोनोमा मौलियोंग जीरो, एंड द करेक्ट आंसर इज एंड्रो. So Andro village in Manipur received the prestigious recognition of one of the best tourism village in the heritage category for 2024,
एंड द अवार्ड वाज पार्ट ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रैबीज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो रैबीज डे जो है, रैबीज एक डिजीज है जो कि आपको या तो डॉग के काटने से या फिर किसी भी जो है कैनाइन वगैरह के आपको काटने से हो सकता है। दिस इज अ वायरल डिजीज। और यहाँ पर क्या होता है, ये आपको जब हाइड्रोफोबिया जो है, इस डिजीज का मेन सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ वाटर। सो रैबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग्स और अदर एनिमल्स लाइक मंकीज वगैरह के भी काटने से होता है। तो ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? अक्टूबर 15, जुलाई 10, अगस्त 22, सितंबर 28, and the correct answer is September 28. So World Rabies Day is observed on September 28 each year to raise awareness about the prevention and control of rabies. इस बार जो है 18th World Rabies Day ऑब्जर्व किया गया और थीम क्या था? ब्रेकिंग रैबीज बाउंड्रीज। ये जो है आपको थीम था रैबीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो। तो इंग्लिश चैनल जो है उसको अकेले जो है वो क्रॉस करने वाला, स्विम करने वाले जो है कौन बन गए हैं इंडियन? जसिंथा कल्याण, सिद्धार्थ अग्रवाल, दिशा नायक, जिया रॉय। एंड द करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ अग्रवाल। सो बेंगलुरु 49-year-old swimmer Siddharth Agarwal has become the oldest Indian to swim across the English Channel, and he successfully crossed the 42-kilometer distance between England and France. और अगर बात करते हैं सबसे पहली बार जो है इंडिया की तरफ से इंग्लिश चैनल को किसने क्रॉस किया था? सो दैट वाज मिहिर सेन इन 1958 में जो है इन्होंने क्रॉस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च्ड। तो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है वो लॉन्च किया गया है ओशन में, ओशन के पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? हिमालयाज, विंध्याचल, समुद्र प्रताप, केशरी। एंड द करेक्ट आंसर इज समुद्र प्रताप। So India's first pollution control vessel for the Indian Coast Guard Samudra Pratap has been designed and built by Goa Shipyard Limited। और इसका जो है 114 मीटर का लेंथ है और विथ जो है 16.5 मीटर है। आपको ये पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, पॉल्यूशन वगैरह को जो है वो क्या करेगा? क्लीन करेगा ओशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिलीपींस जो है वो देती है आपको, फिलीपींस की गवर्नमेंट। और इस बार जो है कितने लोगों को ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है? 5, 10, 6, 8। एंड द करेक्ट आंसर इज 5। सो रेसिपेंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 कौन कौन है? तो ग्युएन थी नॉक फोम, ये जो है फिजिशियन है, वियतनाम से बिलोंग करते हैं। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं। मिया काजी हायो दैट इज फ्रॉम द जापान। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये डॉक्टर्स मूवमेंट है, एक ग्रुप है जो जिसको दिया गया है, ग्रुप ऑफ थाईलैंड डॉक्टर्स। एंड कर्मा फुनसो फ्रॉम द भूटान। सो दीज आर द 5 पर्सनालिटीज हु हैज बीन अवार्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज पास द अपराजिता वीमेन एंड चिल्ड्रन बिल। तो अपराजिता वीमेन एंड चिल्ड्रन बिल जो है ये रेप को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जो है ये बिल है। और इसमें जो अलग अलग प्रोविजन दिया गया कि किसी के साथ इस तरह का सिचुएशन जब कोई करता है तो उसको किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या होगा, इस बिल में सारी चीज़ें मेंशन है। तो ये किस स्टेट ने पास किया है? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। So West Bengal Assembly has passed the anti-rape bill named Aparajita, the Women and Children Bill. Under the new law, the investigation of the rape case will have to be completed in the 21 days में जो है इसको complete करना है। कैपिटल पनिशमेंट का भी इसमें जो है प्रोविज़न है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल में जो वो रेप केस हुआ था नर्स के साथ, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हेल्थ कवरेज टू ऑल सिटीजन्स अबव हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज अंडर द आयुष्मान इंडिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें 5 लाख रुपीज़ का जो है आपको ट्रीटमेंट मिलता है ईयरली। और ये जो है कितने साल के सिटीजन के लिए जो है ये कर दिया गया कि आप सभी लोग इसको अवेल कर सकते हैं। 70 ईयर्स एंड एबव, 80 ईयर्स एंड एबव, 50 ईयर्स एंड एबव, 60 ईयर्स एंड एबव। एंड द करेक्ट आंसर इज 70 ईयर्स एंड एबव। So the cabinet has approved health insurance of Rs 5 lakh under Ayushman India Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana for senior citizen is 70 years and above, and this will benefit to 4.5 crore families across the country। और ये जो है सबसे पहले मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को जो है लॉन्च किया था। कहाँ से? तो रांची से जो है इसको लॉन्च किया गया था। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द वीमेंस सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2024। तो यूएस ओपन जो है आपको टेनिस का टूर्नामेंट है। देयर आर 4 मेजर ग्रैंड स्लैम, दैट इज विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, दैट इज यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये जो है 4 मेजर टूर्नामेंट है, जिसमें से विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे होता है, अमेरिकन एंड आपको जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें से यूएस ओपन का जो है टाइटल किसने जीता है? अरियाना सबालेंका, ईगा स्विएटेक, मार्केटा वोंड्रोसोवा, कोको गॉफ, ये वीमेन सिंगल टाइटल। एंड द करेक्ट आंसर इज अरियाना सबालेंका। So Belarus tennis player Aryna Sabalenka has won the US Open tennis championship title. Sabalenka won the title by defeating America जेसिका पेगुला को हराकर जो है इन्होंने टाइटल लिया है। और मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? तो जैनिक सिनर has won the men's category. He is from Italy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद ये पैरा ओलंपिक गेम्स जो है वो भी कंडक्ट किया जाता है उसी वेन्यू पे। और पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने 6 मेडल जीता था, जिसमें 1 सिल्वर था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, बाकी ब्रॉन्ज था। इंडियाज पोजीशन वाज 71st। इसमें इंडिया ने कितना मेडल जीता है? 32, 35, 29, 40 एंड द करेक्ट आंसर इज 29. So in the Paris Paralympic 2024, India has won a total of 29 medals. Performing the best so far, India has won 7 gold medals, 9 silver medal and 13 bronze medal. और इंडिया का पोजीशन कितना था? तो 18th पोजीशन पे जो है इंडिया इसमें आया था पेरिस पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रीनेम्ड पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है दैट इज द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में आपको ये आइलैंड मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 562 आइलैंड्स जो है वो उसमें देखा जाता है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, और उसका नाम जो है अब चेंज कर दिया गया, क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम, श्री विजयवर्धनपुरम, श्री विजयनगर, श्री हस्तिनापुर। एंड द करेक्ट आंसर इज श्री विजयपुरम. So the central government has changed the name of Port Blair, the capital of Andaman and Nicobar Island, to Sri Vijayapuram. The island played an important role as a naval base of the Chola Empire का एक naval base के तौर पे भी था. तो ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड हाउ मच बजट प्रोविजन फॉर वेनस और वाइटर मिशन. तो मार्स और वाइटर मिशन बहुत पहले इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था. अब जो है ये वेनस और वाइटर मिशन जो है लॉन्च करेगा, जो वेनस के सरफेस को एग्जामिन करेगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा. सो ये कितना बजट इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाएगा? सो 4,236 करोड़, 2,236 करोड़, 3,236 करोड़, 1,236 करोड़. And the correct answer is 1,236 crore. So the Indian government has approved a mission to Venus. The mission aims to explore Venus, the closest planet to Earth. The mission is likely to be completed in March 2028 तक जो है इसको complete करना है. और वेनस के बारे में बात करते हैं तो वेनस is known as the morning star as well as evening star. Venus is the brightest planet. Venus is the hottest planet. तो ये सारी चीज़ें जो है वेनस की क्वालिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे 2024 ऑब्जर्व. तो ओजोन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? ओजोन जो है वो क्या है? एक लेयर है दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर में है एंड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है. और इस दिन को इसी को लेकर ये दिन ऑब्जर्व होता है. और ये कब होता है? 18 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर. एंड द करेक्ट आंसर इज 16 सितंबर. So September 16 is observed as World Ozone Day because the day is celebrated on the anniversary of the entry into force the Montreal Protocol on 16 September 1987 में जो है Montreal Protocol जो कि कनाडा में हुआ था और उस ओजोन को प्रोटेक्शन को लेकर इसी वजह से जो है ये वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the brand ambassador of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. This is important because this is the brand ambassador of a government institution. गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है तो इंपॉर्टेंट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने इसको अपॉइंट किया है. तो किसको अपॉइंट किया है? मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, नवदीप सिंह. एंड द करेक्ट आंसर इज मनु भाकर. सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अपॉइंटेड शूटर मनु भाकर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. और इसके मिनिस्ट्री किसके पास है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो मिनिस्टर हैं करंटली.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के जो है चीफ जो है वो कौन बन गए हैं, हमारे जो एयरफोर्स है उसके चीफ जो है अपॉइंट हुए हैं, न्यूली अपॉइंटेड चीफ कौन बने हैं, अनिल चौहान, मनोज पांडे, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र त्रिवेदी। एंड द करेक्ट आंसर इज अमरप्रीत सिंह। सो अमरप्रीत सिंह has been appointed as the next chief of air staff. He will replace air chief marshal और वी.आर. चौधरी को जो है ये रिप्लेस करेंगे। और हमारे उपेंद्र द्विवेदी जो है, उपेंद्र द्विवेदी वो क्या है, वो है आर्मी चीफ। एंड दिनेश कुमार त्रिपाठी ही इज द करेंट आपको नेवी चीफ, वो अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाला जो है पहला जो साउथ एशिया में कंट्री कौन बन गया, फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो वियतनाम, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। एंड द करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। सो थाईलैंड किंग महा वजीरलंगकोन has approved the same sex marriage act. With this, Thailand become the first country in the Southeast Asia to recognize same sex marriage. Same sex marriage जो है इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, ये जो है आपको उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है सेम सेक्स मैरिज को। Next question is who has won the best film award at the IFA Award 2024. So IFA Award has been announced, and which film has won the best film award in this award ceremony? Animal, Jawan, Sam Bahadur, 12th Fail. And the correct answer is Animal. So the 24th International Indian Film Academy Award has been held in Abu Dhabi, UAE on 28th of September 2024. एंड बेस्ट एक्टर जो है वो किसको दिया गया है, शाहरुख खान फॉर जवान। बेस्ट एक्टर फीमेल रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनीत चोपड़ा फॉर 12th फेल। सो दैट इज कि एनिमल मूवी जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। सो ग्लोबल इनोवेशन स्टार्टअप ये सब जो है एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनोवेशन को लेकर ये रैंकिंग है और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी है, 39, 49, 59, 19। एंड द करेक्ट आंसर इज 39। सो द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया हैज मूव्ड अप टू 39th पोजीशन अमॉन्ग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। इन 2023 इंडिया वाज रैंक्ड 40th इन द इंडेक्स, तो 1 प्लेस जो है वो ऊपर आया इंडिया। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो पब्लिश द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसको पब्लिश कौन करता है, तो वीपो जो है वो पब्लिश करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2007 से जो है पब्लिश कर रहा है। नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। और लास्ट पे कौन है, वो अंगोला है, एक अफ्रीकन कंट्री है, दैट इज दैट सिक्योर्ड द लास्ट पोजीशन, दैट इज 133rd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर जो है ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। और इसमें जो है आपको नंबर 1 स्टेट कौन है जहां आपको फूड की बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, फूड सरप्लस में है, तो डिफिशियंट नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं फील करेंगे, तो ये कौन सा स्टेट है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। So Kerala has secured the first position in the State Food Security Index 2024 for the second time in a row, and the State Food Security Index has been released by the Food Safety and Standard Authority of India. FSSAI जो है इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स नहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया टाइटल किसने जीता है 2024 में, रिया सिंघा, प्रिया सिंह, उर्वशी रौटेला, रिया चक्रवर्ती। एंड द करेक्ट आंसर इज रिया सिंघा। सो द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 competition was held in 22nd September 2024 at Z Studio in Jaipur, and रिया सिंघा belongs to the अहमदाबाद, गुजरात से जो है ये बिलोंग करती है। मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो कौन बनी है अभी, क्रिस्टीना पिस्कोवा। अभी रिसेंट में जो मिस वर्ल्ड है वो कौन है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। और मिस यूनिवर्स जो है वो कौन है, शेनिस प्लासियोस जो है वो मिस यूनिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज won the Dileep Trophy 2024 title. So Dileep Trophy is a domestic tournament of the domestic cricket tournament, and this trophy has won by which of the following team? India D, India B, India C, India A. And the correct answer is India A. So India A has won the Dileep Trophy 2024 title. India A defeated India C by 132 runs in the final round. This trophy is named after दिलीप सिंह जडेजा के नाम पर जो है ये ट्रॉफी है। तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है, तो इंडिया ए की टीम ने ये ट्रॉफी जीत ली है।
Next question is, what is the rank of India in the Asia Power Index Report 2024? So Asia Power Index Report has been released और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है एशिया में कितनी नंबर पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड. So according to the Asian Power Index Report 2024 released by Australian think tank Lowy Institute जो है इसको रिलीज करती है, India is the third most powerful country in Asia after the US and China. And this year India has overtaken Japan to become the third most powerful country in Asia. तो जापान को जो है इन्होंने ओवरकम कर लिया है और इंडिया became the third most powerful country. Next question is, which country has become the largest arms buyer from India? तो सबसे ज़्यादा इस बार जो है किस कंट्री ने आर्म्स बाई किया है इंडिया से? आर्म्स बाई किया मतलब क्या है कि इंडिया जो है इंडिजीनियसली बिल्ड कर रहा है, मेक इन इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है. सो दैट इज द कि विच कंट्री हैज़ become the largest arms buyer from India? तो अजरबैजान, मंगोलिया, अर्मेनिया, वियतनाम, and the correct answer is Armenia. So Armenia has purchased Pinaka multiple launch rocket system, स्काई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और ये जो है ड्रोन इक्विप्ड है. By the beginning of the current fiscal year 2024-2025, Armenia has purchased weapon from India for a total of $600 million का जो है ये ट्रेड हुआ है, and Armenia has bought the maximum arms from India. So these are the most important questions from the September month for laws CET 3 years and 5 years which we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. If you guys have any query then do ask in the comment section. We will get back to you. With that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.